Deepak, and my friend Rajesh is with me behind the cameras. So guys, first of all, we are starting a new channel of Beat Traveling. So please do like, share and subscribe our channel. So guys, हम आए हैं रूपकुंड ट्रैक पर. हमने परसों स्टार्ट किया था आगरा से एंड ट्रैवलर्स से आए और कल शाम तक पहुँचे यहाँ पर. बहुत परेशानी आई रास्ते में, स्पेशली गुदाल भैया वो क्या बोलता है गुड़ कुछ था. आगे एक प्लेस है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखा देंगे. तो उसके आगे थोड़ा एक 40 किलोमीटर का पैच काफ़ी ख़राब था रोड, जहाँ पर हमारा बस का टायर भी फट गया. एंड उसके बाद में फटे टायर में ही हम गाड़ी लेकर वान तक पहुँचे हैं. सो आज हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है एंड दिस इज हाय अजय, ही इज अ ट्रैक लीडर. ओह ये तो बहुत बड़ी बात कर दी ना. नहीं, इट्स द फर्स्ट कैंप टुडे. फर्स्ट जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, वो आज हमारा फर्स्ट कैंप है. तो अभी जस्ट हम लोग पैक कर लिए हैं और गाड़ी तैयार है. तो हम 1 किलोमीटर गाड़ी से जाएंगे, देन वहां से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे. And track, वी आर रेडी विथ ऑफ लगेज एंड एवरीथिंग. तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं रूपकुंड, जिसका एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 16,500 फीट है और इसका बेस कैंप है वान. प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद वुहान इन चाइना. इट्स वान, जो कि लोहाजंग के पास है और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है. आगरा से इसकी दूरी लगभग 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. ये ट्रैक हमने टोटल 5 दिन में कवर किया. And the total distance of the trek was around 60 kilometers, and we started our trek at the elevation of approximately 7,000 feet in Van, and we somehow managed to touch the elevation of 15,500 feet. Hello guys, तो अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं. आज 12 जून है 2021. सो 5 दिन का ट्रैक है. ये हमारा ट्रैक रूट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. वो हमारे ग्रुप मेंबर्स. सो अब 5 दिन का ट्रैक है. टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे आपको. थैंक्स एंड विश मी लक. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू कवर रूपकुंड? सो गाइस, देयर आर 2 windows from January to December. First is May and June, which is post snowfall, and other is September and October, which is before snowfall. If you love to trek in snow, then you should definitely go for this trek in the month of May and June, because after snowfall in winter, this is the only window where you can see snow peaks and trek on snow edges. But without leg gaiters and shoe spikes, it is not recommendable to trek on the snow in Roopkund. But again, it's not pretty sure that you can reach summit in snow line or not, because we never know the snow conditions on hills when we are above 12,000 feet. If one don't like to trek in snow and love the scenic views, should go in September or October, because monsoons are almost over and snow line or snow peaks are hardly visible, and more importantly, summit will be much more easier in these months in comparison of May and June. So guys, हमारा सफ़र 10 जून 2021 शाम 8 बजे आगरा से शुरू हुआ, एंड वी रीच्ड वान ऑन 11th of June at near about 9 PM and stayed in a homestay. Although we can also start this trek from Lohajang, but due to some lockdown conditions and for better accumulation, we decided to start this trek from Van to Didna. If we start this trek from Lohajang, trek route pass from Didna village, where we can find some homestay options also, and we start from one. Trek route passes from Gary Patyal, but we decided to pass Didna village from one so that we can be more accumulated.
हमारा पहला आज का कैंपेन पूरा हुआ जो कि दीदीना गांव में ख़त्म हुआ है। ये दीदीना विलेज पर लगभग 9000 स्क्वायर फीट के ऊपर हाइट पे है और कल की कैंपेन हमारी मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट होगी। ये दीदीना गांव के साइड व्यू है और ये हट्स बनी हुई हैं। ये यहाँ हमारी कैंप साइट है, रात को यहीं स्टे करना है। Hi, good morning. This is our day second, and we camped at Didna. So we had started our trek, and we will reach to Ali Bugal. So we will stay at Ali Bugal today, and the trek is about 7.5 kilometers, 3.5 kilometer ascent, and the ridge walk. Rest is the ridge walk. So this is Kamal Dada. Hi. This is our track leader and अजय दादा से मिलवा चुका हूँ, ये ग्रुप लीडर है हाँ, मैं तो दोबारा आ गया and हेलो डॉक्टर साहब, he's our caretaker, he's our caretaker. 3.5 समथिंग ग्रेजुअल असेंट है, मतलब असेंट है, फिर 1 किलोमीटर ग्रेजुअल असेंट है और फिर मिडोज में चलते रहना है, पूरा ऐसे रिज है, रिज पे हाँ ठीक है भाई। Ready? भगवान बद्री विशाल की This day was our first toughest day because many of us, including me, was very new to trek in such conditions. Our trek starts from Didna to Ali Bugyal and the trek was 11 kilometers approximately, having 90% ascent at the elevation of 11,000 feet approximately. We reached the campsite at 5 p.m. So let me bring something important about Ali Bugyal. When we start trek from Didna, after 7 to 8 kilometers of trek, the tree line ended up between the Ali Bugyal range. That shows you are on the right path. हेलो गाइस, जैसे कि सुबह आपको बताया था, आज हम अपने माउंटेनिंग ट्रैक पे निकले हुए हैं। आज सुबह हमने दिदना से ट्रैक शुरू किया था, क्योंकि 8:30 बजे शुरू करा था, अब शायद 2 बज रहे हैं। तो करीब 6 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम अली बुग्याल रेंज पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद हम अपनी कैंप साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आज हम कैंपिंग करेंगे। बुग्याल रेंज पहुंच चुके हैं, व्यू देखिए यहाँ से। 2.5 किलोमीटर आगे यहाँ से अभी हमारी कैंप साइट होगी और हमें उस पहाड़ को पार करके अभी कैंप साइट पर जाना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज दूसरा दिन है हमारी ट्रैकिंग का
अभी 3 दिन और है, समिट हम चौथे दिन कवर करेंगे। सो गाइज, आज रात की कैंपिंग के कुछ वीडियो और शूट करूँगा इस एपिसोड में, फिर इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। प्लीज़ अगर आप एंजॉय करते हैं वीडियो को तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Mahananda Devi Temple is a self-locator of Alibugal campsite. Green fiber huts are visible from far away to locate the campsite. Also, please remember, green fiber huts are permanently located over there and had good water resources nearby and is open for everyone. But one should clean the area by himself according to his or her need. Hi again. How are you feeling, guys? Because I am exhausted. लेकिन एट लास्ट हम पहुंच गए हैं। वो रहा हमारा कैंप, जहाँ हम कैंप करने वाले हैं। और वो आपको जो बादल दिख रहे हैं उसके पीछे अभी पहाड़ दिख रहा था, लेकिन अभी कोहरा होने की वजह से ढक गया है। इसके पीछे एक पहाड़ है, उसको छड़ के फिर वापस उधर उतरना है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर करने के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे एट लास्ट। सो गुड लक अगेन फॉर मी। Thank you. गाइस कैंप साइट पहुंच चुके। ये राजेश भाई थोड़ा साइड बताएंगे इसके बारे में। क्या राजेश भाई बताइए। कैंप अरेंज किए गए हैं जहाँ हम रात को रुकेंगे। सारी सोने की फैसिलिटी इसी में होगी। आंधी बारिश कुछ भी तूफान सारा इसी में बीतेगा।
स्लीपिंग बेग के संग। So guys, our today's stay in Alibugyal in camps has already been organized and we all are now a bit tired today because of the long day and that too without having the lunch. So time to say good night. बट आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. So see you in the next episode with much more adventurous terrain. Good night again and see you soon. Bye.